Hello students, today we will study Fundamental Unit of Life, Chapter 5, Class 9. In this chapter, we are going to study discovery of cell, how the cell was discovered and who discovered the cell. Then history of the cell theory, types of organism, unicellular and multicellular organism, types of cell, prokaryotic and eukaryotic cells, difference between plant cell and animal cell, then different methods of transport across cell membrane, osmosis and diffusion, then how the cell will behave when we put into hypotonic, hypertonic and isotonic solution, then different components of the cell, plasma membrane, cell wall, nucleus, cytoplasm and various cell organelles. Now comes the discovery of cell. Cell was very first discovered by Robert Hooke in 1665. He was an English scientist and he observed the cell in his self-designed microscope. माइक्रोस्कोप जो उसने यूज़ किया उसने खुद ही डिज़ाइन किया था एंड ही सॉ सेल्स इन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क इट कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री. पेड़ का जो bark होता है that is the dead cell. So Robert Hooke discovered the cell, mainly he discovered the dead cell. Okay, this is the compound microscope. Now what he observed honeycomb like structure, and honeycomb, this is the structure that was observed by Robert Hooke and he compared this structure with honeycomb. Honeycomb means madmakhi ka chhatta and name it cell. Cell means small room. So after his discovery indicate that first time that's after his discovery it was indicated for the first time that living organism consists of number of small structures. So these various small structures are known as cells. Now comes the history of cell. First of all, in 1665, Robert Hooke discovered the cell. We have already seen he discovered the cell in the bark of a tree. Then Leeuwenhoek in 1674 discovered the living cell in pond water. So if the question comes who discovered the cell first time, then we will answer Robert Hooke. But when the question comes who discovered the living cell for the first time, then we have to answer Leeuwenhoek. Now discovery of nucleus. So nucleus was first discovered by Robert Brown. What is the nucleus? Nucleus is present in the center of cell. Suppose we are drawing a cell. In the center of the cell, a structure is present and this structure is known as nucleus. And this structure was very first observed by Robert Brown. Now inside the cell, the small granules are present, small liquid filled substance is present, and this liquid filled substance was termed protoplasm by Purkinje. Then in 1838 and 1839, Sheldon and Swan, they were botanists and zoologists, they formulated the cell theory. Later on, cell theory was modified by Rudolf Virchow in 1855 by adding a point. उसने एक point add किया, क्या add किया कि new arises from pre-existing cell. नई cell जो पहले से exist कर रही हैं cell उन्हीं से arise होंगी. So this is the cell theory. When we talk about cell theory, तो हमें 3 साइंटिस्ट का नाम लेना है, शेल्डन, स्वान and Virchow. 3 postulates means 3 points of cell theory are: first is cell is the smallest unit of life. Second, all living things are made up of one cell or more than one cell.
These 2 points were given by Selden and Swan. Later on, they didn't explain how the new cell arises. Then in 1855, Rudolf Virchow, he expanded the cell theory by suggesting that new cell arises from the प्री एग्जिस्टिंग सेल, क्योंकि इन्होंने ये तो बताया ही नहीं नई सेल कैसे अराइज होगी। तब रुडोल्फ विर्को ने बताया कि नई सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल भी कहीं से आई होगी, तो उसका इवोल्यूशन, उसका स्टडी 12th क्लास में है, इवोल्यूशन चैप्टर में डिटेल में। अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि नई सेल कैसे अराइज होती है। नई सेल अराइज होगी प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो सेल पहले से प्रेजेंट है उसी से नई सेल अराइज होगी। सो 3 postulates ऑफ सेल थ्योरीज आर, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अर्थ पे, जो सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की वो है सेल। अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, सभी किसके बने होंगे? सेल्स के। और नई सेल कैसे अराइज होगी? नई सेल अराइज होगी प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सो दीज 3 आर द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। देन difference between various different types of organism. One is unicellular and second is multicellular. Uni word ही आपको पता होगा, uni means one, cellular means cell. So unicellular organism, they are made up of one cell. Multicellular organism, they are made up of more than, multi means more than one, cellular means cell. So multicellular organisms are made up of more than one cell. एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, अमीबा। जैसे आप यहाँ पे अमीबा देख रहे हो, दिस अमीबा इज सिंगल सेल। सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, जितने भी फंक्शंस होंगे सारे एक ही सेल परफॉर्म करेगी। एक सेल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, then respiration, exchange of gases, excretion, disposal of waste material. All these functions are performed by single cell in a unicellular organism. Now taking the example of multicellular organism, for example हम ह्यूमन देखते हैं। ह्यूमन के अंदर किडनी सेल्स, किडनी की सेल्स का क्या फंक्शन होता है, यूरिन को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन करना। देन गोनैड्स, दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। देन respiratory system, lungs are involved, digestive system, liver. These are different group of cells which are specialized to perform different function. अब इसमें देखो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वर्क इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट सेल। तो यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, ओके, डिवीजन ऑफ लेबर। बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई डिवीजन ऑफ लेबर होगा नहीं, क्योंकि सिंगल सेल है, वो ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। नाउ सी, अब आप देखेंगे ये है नर्व सेल and this is blood cell, WBC, sperm cell, ovum. अब आप मेनली देखिए ये नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर, ब्लड सेल का स्ट्रक्चर, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। नर्व सेल्स के अंदर क्या है, साइज और शेप अलग होगा। WBC का साइज शेप अलग है, RBC का साइज शेप अलग है। अब साइज और शेप एक सेल का कैसे चेंज होता रहता है, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। जैसे नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन। इम्पल्स ट्रांसमिशन, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करने का काम किसका होता है, नर्व सेल्स का। देन फंक्शन ऑफ WBC का काम क्या होगा, बॉडी के अंदर जितने भी फॉरेन मटेरियल है उसको एंगल्फ करके डिस्ट्रॉय करने का। RBC का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये जो शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट सेल्स है
इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, एक डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स सेपरेशन ऑफ टास्क इन ए सिस्टम। नाउ types of cell, there are two type of cell, prokaryotic cell and eukaryotic cell। प्रो 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 का मतलब क्या होता है, पुराना, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रिमिटिव टाइप का, प्रिमिटिव मतलब पुराना। यू का मतलब होता है न्यू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस कैसा होगा, एडवांस्ड। अब जो पुराना न्यूक्लियस है उसमें कुछ चीज़ मिसिंग होगी, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो नया न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। So in prokaryotic cell size is generally small, और small कितना होता है 1-200 micrometer, and in eukaryotic cell size is generally large। Here in prokaryotic size is generally small। Second difference क्या होगा, nuclear region is poorly defined due to the absence of nuclear membrane। अब हम prokaryotic का स्ट्रक्चर देखें। अब ये जो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे कहीं पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। ओके, हेयर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन वन साइड, एंड उस जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। इन केस ऑफ यूकैरियोट देयर इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड हेयर इन द सेंटर वेरियस chromosomes are present। Here single chromosome is present in prokaryote, and in eukaryote more than one chromosome are present। फोर डिफरेंस क्या होगा, अब देखिए आप प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको राइबोसोम के अलावा कोई सेल ऑर्गेनली दिख रही है नहीं, बट इन यूकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम्स, ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं एंड प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का क्या होगा, साइज स्मॉल होगा, यूकैरियोटिक सेल का साइज लार्ज होगा। इन प्रोकैरियोट न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन प्रोकैरियोट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, एंड इन यूकैरियोट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे प्रोकैरियोट में जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल एक साइड में क्लम्प की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और दिस इज नोन एज न्यूक्लियोइड। इन प्रोकैरियोट सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, इन यूकैरियोट मोर देन वन क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। membrane bound cell organelles are absent in prokaryote, membrane bound cell organelles are present in eukaryote। Now difference between plant cell and animal cell। पहले आप प्लांट सेल, दिस इज प्लांट सेल, मैं लिख देती हूँ, एंड दिस इज एनिमल सेल। अब आप देखिए आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है प्लांट सेल में। पहला डिफरेंस आपको दिख रहा होगा शेप की, ये सर्कुलर शेप की है। दूसरा बड़ा डिफरेंस इसमें क्या दिख रहा है, ये जो सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है, क्या इधर है, इधर वैक्यूल्स है बट दैट इज स्मॉलर इन साइज। दूसरा थर्ड डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लास्टिड प्रेजेंट है ग्रीन कलर के, और एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट है। ओके, नाउ कमिंग बैक, यहाँ पे देखो सेल के बाहर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, दिस इज सेल वॉल, एंड इन एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट। तो हम सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। दूसरा क्या देखा था हमने, शेप ऑफ सेल, डिस्टिंक्ट एज शेप इज आइदर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप, राउंड और इरेगुलर शेप। यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर शेप है प्लांट सेल की, एंड दिस इज राउंड शेप।
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, दोनों में प्रेजेंट होगा क्योंकि दोनों यूकेरियोटिक हैं, बट न्यूक्लियर की लोकेशन अलग होगी। कैसे अलग होगी? यहाँ पे देखो, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर। यहाँ पे इतना बड़ा वैक्यूल है, इस वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस इज डिस्प्लेस्ड इन वन साइड। ओके। Lysosome. Lysosome are rarely present in plant cell and these are always present in animal cell. Plastids, क्योंकि plant cell है, photosynthesis करना है तो plastid present होंगे, यहाँ पे plastid absent होंगे. Vacuoles, single or very large vacuole that is centrally located. Okay, यहाँ पे vacuoles हैं. देखो, plant cell में vacuoles large and centrally located. Here vacuoles are smaller in size. अभी इसमें दिख नहीं रहा होगा, but vacuoles these are smaller in size in case of animal cell. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. Cell wall is present in plant cell and absent in animal cell. Then shape of cell, this is rectangular or square shape. They are round and irregular shape. Nucleus, it lies on one side of the cell and it lies in the center of the cell in animal cell. यहाँ पे न्यूक्लियस वन साइड में क्यों होता है? क्योंकि वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड वैक्यूल डिस्प्लेस द न्यूक्लियस इन वन साइड. Here lysosomes are rarely present in plant cell and in animal cell they are always present. Plastids are present in plant cell and absent in animal cell. Then vacuole is centrally located and in animal cell there are numerous and small vacuoles. Now comes osmosis and diffusion. Osmosis and diffusion, these are modes of transport across cell membrane. तो सबसे पहले ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आगे स्टडी करेंगे. पहले हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन वर्ड का मतलब समझ लेते हैं. ऑस्मोसिस, in osmosis there is only movement of water, but in diffusion there is movement of gases. ओके. दूसरा डिफरेंस क्या है? ऑस्मोसिस के अंदर यहाँ पे देखो एक मेम्ब्रेन है एंड दैट मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल. डिफ्यूजन के केस में कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है. देखो, पहला डिफरेंस क्या होगा? इन केस ऑफ ऑस्मोसिस देयर इज मूवमेंट ऑफ ओनली water molecule. In case of diffusion there is movement of air molecules. Second difference is in osmosis is a special type of diffusion from special type of diffusion of water molecules through a semi permeable membrane. Okay, so diffusion is defined as it is the movement of water molecules through a selectively सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली. देखो, सेमी परमिएबल, कुछ मेम्ब्रेन ऐसी होती हैं जैसे सेल वॉल है, वो सारे मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर देती है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल के सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली permeable. So this membrane is known as selectively permeable because it allows the movement of only water molecules. So the movement of water molecule through a selectively permeable membrane. तो दो चीज़ों पे फोकस करना है. फर्स्ट इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सेकेंड इज थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तीसरा क्या होगा? अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन. ओके. एक होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ करना, उसी को तो हम बोलेंगे अगेंस्ट. और अलोंग का मतलब क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होगा उसको हम बोलेंगे अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट.
So what is the osmosis? It is the movement of first water molecule, second through the selectively permeable membrane, third along the concentration gradient. Okay, so plant tends to obtain water through osmosis. Getting? Now second is diffusion. It is the spontaneous movement of substance from a region of high concentration to region of low concentration. यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल भी स्पेसिफाइड नहीं है. दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ही अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है. सो डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है और गैसेस का मूवमेंट है. जैसे डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेंड टू मूव थ्रू द मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ओके, जैसे हमारे लंग्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में लंग्स की एल्वियोलाई जो टर्मिनल होते हैं लंग्स के, एल्वियोलाई के थ्रू गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. आरबीसी क्या है? सेल है. ओके, अब आरबीसी को हम तीन तरह के सॉल्यूशंस में रखते हैं. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन के अंदर वाटर है बस और कुछ भी नहीं है. आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब जो आरबीसी के अंदर कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, सेम कंसंट्रेशन इस आउटर सॉल्यूशन में. आरबीसी के अंदर जो कंसंट्रेशन होगी वही कंसंट्रेशन इस वाटर के अंदर है, सराउंडिंग सॉल्यूशन में है. ये जो सॉल्यूशन है सराउंडिंग, इसका कंसंट्रेशन और आरबीसी के अंदर का कंसंट्रेशन सिमिलर है. अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अगर आपने इस पानी में ज़्यादा शुगर या ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया तो ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? हाइपरटोनिक. हाइपर का मतलब ज़्यादा, टोनोस का मतलब कॉन्सेंट्रेशन. वो सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सेल से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अब देखो, आप यहाँ पे भी कर सकते हो. आप रेजिन्स लेंगे, किसमिस आती है ना, रेजिन्स को आप एक तो सिंपल पानी में डिप करो. सिंपल पानी में डिप करोगे तो क्या हो जाएगी? वो रेजिन्स स्वेल हो जाती है. ओके, दूसरा आप उसको सॉल्ट वाटर के, वो जो स्वेल हुई रेजिन्स है उसको आप सॉल्ट वाटर के अंदर डाल के देखिए, उससे क्या होगा? वो रेजिन फिर से श्रिंक हो जाएगी. क्यों? अब इसका हम रीज़न देखते हैं. आरबीसी को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? बाहर वाटर की बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, अंदर पानी कम है. इन द आउटर साइड वाटर concentration is higher and in the inner side water concentration is low. तो हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा था? वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. जहाँ पानी ज़्यादा होगा, जहाँ वाटर ज़्यादा होगा, वहाँ से वाटर उस साइड मूव करेगा जहाँ पे वाटर कम होगा. तो वाटर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सराउंडिंग सॉल्यूशन से आरबीसी के अंदर मूव करेगा वाटर. ओके, इस केस में हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो जितना वाटर अंदर जाएगा उतना ही वाटर बाहर आ जाएगा, क्योंकि आरबीसी के जो कॉन्सेंट्रेशन है सेम कॉन्सेंट्रेशन सराउंडिंग सॉल्यूशन की है. अब हाइपरटोनिक के अंदर क्या होता है? सेल का सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन कम है. तो ऑस्मोसिस से क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो जाएगा, तो वाटर अंदर से आ जाएगा बाहर. अब हम देखते हैं इसको. नेम ऑफ द सॉल्यूशन. इन केस ऑफ हाइड्रोनिक सॉल्यूशन, what is the condition? Medium surrounding the cell has higher concentration of water than the cell. तो इस केस में क्या होगा? When cell is placed in hypotonic solution, then cell will gain water by osmosis and likely to swell up. ये तो है यहाँ पे
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सराउंडिंग सॉल्यूशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. इन दिस वे सेल विल टेंड टू स्वेल अप. Okay, next solution medium as the case cell will stay the same size. Okay, in case of hypertonic solution medium have lower concentration of water than the cell. इस मीडियम के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेल की कॉन्सेंट्रेशन से कम होगा. देन इस केस में क्या होगा, वाटर क्रॉस द सेल in both direction but more water leave the cell than enter it. जितना ज़्यादा सेल में वाटर एंटर करेगा उससे ज़्यादा सेल से वाटर बाहर आ जाएगा. So these are different types of solution. What happen when a cell is placed in sugar or salt solution? These are different components of the cell. ये हम टिपिकल सेल देखते हैं. सेल के जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है. तो सिर्फ एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, बाकी बैक्टीरिया, फंगस एंड plant cell wall is present. Third is nucleus. Nucleus is present. Nucleus is the brain of the cell. Then cytoplasm, it is the liquid substance. Then various cell organelles में हम पढ़ेंगे endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria, lysosome, plastids and vacuoles. Okay, हम कल करेंगे. अभी आपको क्या करना है, ये वीडियो देखना है, उसके बाद नोट्स बनाने हैं. जितने भी डायग्राम्स मैंने इस वीडियो में दिए हैं वो सारे डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं, लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं. ओके, गुड लक.